Ignited Minds Tutorials, a reputed educational platform, has recently released a comprehensive video series on the topic of current electricity in physics. This series caters to CBSE and Maharashtra State Board Class 12 students, as well as IIT, NET, and CET aspirants. The videos delve into the fundamental concepts of current electricity, providing a detailed explanation of various topics. Starting from Ohm's law and resistance, the videos progress to cover concepts like electrical power, Kirchhoff's laws, and series parallel combinations of resistors. The tutorials also explore advanced topics such as the Wheatstone bridge, potentiometer, and electrical measuring instruments. Each video is meticulously designed, ensuring clarity and ease of understanding for students of different proficiency levels. The content is aligned with the latest CBSE curriculum, making it an ideal resource for board exams and competitive entrances. Learners can significantly benefit from these videos, gaining a solid foundation in current electricity for future academic pursuits. Ignited Minds Tutorials has a track record of excellence in providing quality educational material. Their commitment towards helping students excel in their studies is commendable. By uploading this extensive series, they have made current electricity accessible to a wider audience, thus igniting young minds to explore the fascinating realm of physics and empowering them for success in various examinations like CBSE, IIT, NET, and CET. Okay, Vachavadi, we will start with this new chapter in physics, that is current electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बहुत कुछ प्रीवियस क्लासेस में जैसे 9th या 10th में पढ़ा हुआ है, जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में हमने ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ी है जो स्टैटिक है, जैसे आपके चार्जेस स्टैटिक हैं, दे डू नॉट मूव, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़िए। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस विच डू नॉट मूव, ठीक है, फॉर व्हाटसोएवर रीजंस दे आर नॉट मूविंग. But when we talk about current electricity, we are talking about charges which are moving, which means that their positions are changing with respect to time. ठीक है? Okay. So charge क्या होता है? What is induction of charges? Electrostatics, capacitor, ये सब हमने पढ़ा हुआ है वैसा, ठीक है? Electrostatics में हमने capacitor पढ़ा, electrostatics के अलग अलग theorems पढ़े, Gauss's theorem पढ़ा. इंडक्शन ऑफ चार्जेस, इंडक्शन मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर नॉन चार्ज बॉडी को अगर चार्ज बॉडी के पास में लाएंगे तो वहाँ पे वो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। विदाउट टचिंग जो चार्जेस डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। आज पढ़ेंगे भाई साहब क्या, व्हाट इज करंट, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। अभी तक आपने ओम्स लॉ को कैसे पढ़ा है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। वोल्टेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म आज हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली इज जिसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो दैट व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट एंड गेट रब्ड विद ईच अदर द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हैपेंस। तो किसी भी दो बॉडी में अगर हम रबिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आपने भाई साहब यू आर यूजिंग एबोनाइट रॉड को आपने वुल से रब किया, ठीक है, या आपने किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, सो इसमें होगा क्या, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी में जाएंगे, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज एक्वायर रहेगा, लेकिन ये वहीं पे होगा। दिस चार्ज इज नॉट गोइंग टू गेट कैरिड फॉरवर्ड ड्यूरिंग द विद इन द बॉडी, वहीं पे होगा ये प्लस या माइनस चार्जेस, ठीक है। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो दैट व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट एंड गेट रब्ड विद ईच अदर the transfer of charges happens. The electricity produced by this method is known as frictional electricity. इस इलेक्ट्रिसिटी को भाई साहब अपन क्या बोलेंगे? What type of electricity is this? This is known as frictional electricity. ठीक है, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, व्हाट टाइप ऑफ मेथड भाई साहब? आपका इलेक्ट्रिसिटी, the electricity produced by this method is known as frictional electricity, basically rubbing की वजह से। But to store these charges we need something which we can use charges in recent future, ठीक है। Okay, in 1801 the Italian physicist Alejandro Voltas, ठीक है, invented first electrical battery called voltaic pile, which made by stacking several pairs of alternating copper और सिल्वर जिंक डिस्क। तो इन्होंने पहली बार एक बैटरी बनाई, ठीक है,
इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय क्लोथ कार्डबोर्ड सोक्ड इन ब्राइन। ब्राइन बेसिकली होता क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, ठीक है। ब्राइन इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। दिस बैटरी कुड कंटिन्यूस प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली बार हमने देखा कि कैसे एक सेल को बनाकर हम इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन अटेम्प्ट दैट वाज मेड, ठीक है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई भाई साहब, ओके। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट पीपल, Alejandro Walters also observed that when the copper and zinc plates were sink in an acid solution, more electricity got produced, ठीक है। तो कॉपर और जिंक प्लेट्स को उन्होंने जब भाई साहब किस में डाला, देखो ये आपका एक बैटरी हो गया, ये कॉपर और जिंक प्लेट्स में वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और विद इन द लिक्विड द आयंस आर बेसिकली द कैरियर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। In outside the liquid, the wires are the carriers of charge. Within the liquid, the electrolyte is basically the carrier of charge, ठीक है। और यहाँ पे electrolyte क्या क्या है, the Alejandro Walters observed that when the copper and zinc plates were sink in an acid solution, more electricity was produced. ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था। जितना ज्यादा कोई आयनाइज होगा उतना ज्यादा भाई साहब चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे एसिड्स जो होते हैं वो भाई साहब कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। आपको बैटरीज में भाई साहब एसिड्स होती हैं, ये एसिड्स कौन कौन सी होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ठीक है, ज़्यादा करके। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, और आयनाइजेशन होगा तो आपके विद इन द सोल्यूशन आपके चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे, आयंस, ठीक है। सो अगर हम बात करें भाई साहब विद इन द सोल्यूशन, तो विद इन द सोल्यूशन या एसिड सोल्यूशन, ठीक है, हु आर द चार्ज कैरियर्स, द आयंस। तो अगर आपने H2SO4 लिया है, आपको मालूम है भाई साहब 2H प्लस SO4 2 माइनस, ये आपके आयंस बनते हैं, एंड दीज बिकम द चार्ज कैरियर्स, ठीक है, दीज बिकम द चार्ज कैरियर्स। और क्योंकि एसिड्स में 100% डिसोसिएशन होता है, इसीलिए आपका इफेक्टिव चार्ज कैरिंग भी होता है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो आप भाई साहब अभी नेट करंट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाउ मच इज द चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया, अभी देखो इसके पहले आपने एरिया का विश्लेषण नहीं किया था, ठीक है। आपके लिए कितना करंट जा रहा है भाई साहब, कितना करंट जा रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम वाज योर करंट, है ना, कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम में, वही था। लेकिन अभी आपका जो डायमेंशन में आप पढ़ रहे हो उसमें आपका एरिया भी आता है, और इसी एरिया के वजह से करंट को एक वेक्टर का फॉर्म मिलता है। करंट का डायरेक्शन तो है, इट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन फिर भी हम उसको वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एरिया पे आएंगे, ठीक है। इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया, ठीक है। इसके पहले देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एरिया पढ़ा, EDS, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर लेंगे अपन, ठीक है। ओके, इफ डेल्टा क्यू amount of charge, that is free electrons, is passing through a hypothetical cross sectional area of conducting wire in time delta t, then the current is defined as I is equal to delta q by delta t, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया से भाई साहब इतने चार्जेस पास हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू इज द टोटल। अभी ये डेल्टा क्यू क्या होगा, आपको मालूम है क्यू क्या होता है भाई साहब, NE होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा n जो होगा वो आपका एक होल नंबर होगा, ठीक है। So Q is basically NE. So the number of electrons that are passing through a particular area will basically constitute the total charge, and this charge per unit time will be basically the current that is produced, ठीक है। Okay. So अगर 1 कूलम चार्ज है is flowing through a cross sectional area of the wire in 1 seconds, then the current is called 1 ampere. तो भाई साहब करंट क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर क्या है भाई साहब, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। सो अगर आपको एम्पियर को डिफाइन करने दिया जाए तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इफ इन 1 सेकेंड 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है, क्लियर है। ओके। इलेक्ट्रिक करंट I इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अभी आप देखोगे भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, इसको अपन किससे एक्सप्रेस करते हैं,
कैपिटल एम से, और इसको मेजर एसआई यूनिट आपका क्या है, केजी, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, ओके चलिए लेंथ को अपन किस में, कैपिटल एल, और इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर। फिर टाइम, टाइम को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और मेजर करते हैं सेकेंड से। इसके बाद टेम्परेचर, ओके चलिए टेम्परेचर, टेम्परेचर को भाई साहब अपन किससे लिखते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, यूनिट्स एंड डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, के, ओके। और इसको मेजर किस में करते हैं भाई साहब, केल्विन, ठीक है, ओके। और कितने यूनिट्स हैं, कितने, तो 7, ओके। क्या क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको अपन किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं, आई भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको मेजर भी अपन एम्पियर में ही करते हैं, ठीक है। और क्या है बोलो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसको अपन किस में मेजर करते हैं भाई साहब, कैंडेला में। हालांकि 11th और 12th में पूरा आप ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या है बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप किस में मेजर करते हैं, मोल्स में। और इसको भाई साहब लिखते भी पूरा ही है, मोल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो और एडिशनल चीजें हैं, वो क्या हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं हम स्टेरेडियन में, ठीक है। सॉलिड एंगल को अपन मेजर करते हैं किस में, स्टेरेडियन में, ठीक है। और आप एंगल को मेजर करते हैं किस में, रेडियंस में। सो दीज आर 2 एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है, यहाँ पे आपका यूनिट ऑफ करंट क्या है, देखो एम्पियर है, और एम्पियर खुद ब खुद आपका एक इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, कहीं कहीं पे आप ए भी लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे, ठीक है। मतलब ये तीनों भी आपके 0 में हो जाएंगे, और a⁻1, कहीं कहीं पे आप I1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका मास, टाइम, ये सब हो गया, इस मास, लेंथ, करंट, टाइम, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट कितना हो गया भाई साहब, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कितना हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आर बी क्लियर अबाउट द डायमेंशंस एंड यूनिट्स पार्ट ऑफ इट, पीपल क्लियर है भाई साहब, ओके 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 ओके। तो जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फ्लो ऑफ 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ, कितना करंट हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन का भाई साहब चार्ज बोलो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6, ठीक है। सो दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक का चार्ज हो गया, और 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया टोटल चार्ज पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर, मतलब आपका भाई साहब करंट। तो इसका जितना वैल्यू आएगा देखो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 + 7, तो ये हो गया आपका -12, ठीक है। ये हो गया आपका एम्पियर, ऑप्शन ए, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, Q = Ne होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द फॉलोइंग डेटा आर गिवन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है कितना, 10⁻⁷ है, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, QNE अपॉन टाइम, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻12। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके ओके ओके। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, देखो भाई साहब अपन बोलते हैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। समझ लो ये भाई साहब बैटरी का पोटेंशियल है, ये प्लस है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली प्लस, और ये आपका माइनस। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अपन क्या बोलते हैं, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। लेकिन किसी भी सर्किट में फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। इन एनी सर्किट इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। तो इन दोनों एंड्स में क्या है भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए देखो करंट फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू, हाँ उसके पेपर में घुस जा भाई साहब, स्कैनर दूं, एक नया चश्मा आया है, मिशन इम्पॉसिबल देखा है तूने, नहीं, देख ले, उसमें ऐसा चश्मा लगाता है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है, उधर से प्रिंट निकल आता है, ऐसा ही कुछ तुम्हारे जीवन में होना चाहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट इट्स बेस्ट। एकदम इतने प्यार से निहार रहा है दूसरा का पेपर, उसके आधे में अगर तू अपने पेपर को निहार ले कहीं पहुंच जाएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू द अदर एंड ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये यहां से यहां फ्लो हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन हम बोल रहे हैं करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में, लेकिन एक्चुअली करंट कैसे मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का अगर मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? ऐसे। तो कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनली हम हमेशा ऐसा ही करेंगे कि इट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। Under electrostatic conditions, we know that the electric field inside an isolated conductor is zero and all the free electrons are in random motion so that there is no velocity gradient that exists. ठीक है, देखो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? व्हाट इज आइसोलेटेड कंडक्टर? ओके, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हो। ठीक है, so under electrostatic conditions we know that the electric field inside an isolated conductor क्या है भाई साहब? आपका जीरो है। ठीक है, all free electrons, तो free electrons तो हैं लेकिन सब रैंडम मोशन में, मतलब इसका मोशन और इसका मोशन देखो, एक ऐसे मूव कर रहा होगा, एक ऐसे मूव कर रहा हो, तो दोनों का रिजल्टेंट मोशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये चीज आप समझेंगे आगे चलकर। एक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो दूसरे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो टोटल वेलोसिटी दोनों की क्या हो रही है? जीरो हो रही है। ठीक है, under electrostatic conditions we know that the electric field inside an isolated conductor is zero and all the free electrons are in random motion so that there is no velocity gradient that exists. velocity gradient मतलब resultant velocity, ये होगा ही नहीं, resultant velocity exist ही नहीं करेगा। ठीक है, clear है? okay, but when this isolated conductor is connected to the battery, positive and negative charges are induced on the sides of the conductor. जैसे ही आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर शोन। सिंस द कंडक्टर इज नो लॉन्गर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो अभी भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होना मतलब क्या है? जब आपके चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस विद इन द कंडक्टर आर नॉट मूविंग। तो क्या वाकई में किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव नहीं करते हैं? तो आंसर इज नो, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रैंडम मोशन हो रहा है, लेकिन एक का मूवमेंट दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल करता है। जैसे ही आपने भाई साहब क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन सब स्ट्रीमलाइन होकर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो ऑल ऑफ देम विल फॉलो अ स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, फिर रैंडम मोशन नहीं रहेगा, तब आपका एक का मोशन दूसरे के मोशन को कैंसिल नहीं करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था भाई साहब? अभी तक जब आपने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों का मोशन आपस में कैंसिल हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर जा रहा है तो एक बराबर इधर जा रहा है, इन दोनों का मोशन आपस में कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी सब के सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ कंडीशन ऑफ, हम बोल सकते हैं व्हाट वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है जहां पे भाई साहब कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स फील्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा? आपने देखो पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू होता है कि नहीं? तो अभी भाई साहब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फोर्स को क्या बोल सकते हैं? माइनस ई इंटू ई। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये जो फोर्स है ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या फील कर रहा है? एक फोर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। क्या ये समझ में आ रहा है? और आपका इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। सो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इसीलिए ये माइनस साइन है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन फील्स एन अट्रैक्टिव फोर्स minus E and hence the electrons flow from negative terminal to positive terminal of the battery where the holes। अभी देखो होल्स मतलब क्या होता है? आप देखो सॉलिड स्टेट में भी पढ़ चुके हो, आपके इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो होता है पॉजिटिव होल। समझ में आ रहा है? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? अपनी अपनी जगह से भाई साहब गए हैं,
और जब ये अपने अपनी जगह से हिलते हैं या अपने अपने जगह को वेकेंट छोड़कर आते हैं तो वहां पे पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये पॉजिटिव होल्स भाई साहब इस तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव फोर्स, तो एक भाई साहब रिपल्सिव फोर्स ये वाला होगा F इज इक्वल टू माइनस ई, ये वाला होगा F ई, और ये भाई साहब क्योंकि ये वाला फोर्स जो होल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका F इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, एंड इट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही हम लेते आए भाई साहब। तो आपका मोटे मोटे तौर पे आपका क्या है भाई साहब, कन्वेंशनल करंट जो है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? कन्वेंशनल करंट आपका भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्चुअल फ्लो है। ठीक है, ओके। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट अपन एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। ऑपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेंटेन द मेथोडोलॉजी दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लो पोटेंशियल, गैस फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लो पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे ये तो फ्लैट टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर पेन रख दिया तो ये लुढ़क जाएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि पेन को जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है, यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है क्योंकि इसका हाइट कम है। जैसे मैंने इसको रखा अपने आप लुढ़क जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका एक फ्लो है, तो इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाउएवर द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके 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 ओके। अभी भाई साहब दुविधा की बात यह है कि हर चीज को हम फिजिक्स में इजी बनाने के लिए वेक्टर फॉर्मेट में ले लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर फॉर्मेट में हमको लेना ही पड़ता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इमर्ज होते हैं। ठीक है, तो करंट को हम अभी तक तो स्केलर में ही लेते आए हैं और स्केलर ही रहेगा करंट अपने आप में। देखो आप बोलोगे भाई साहब अब मैंने इसको स्विच दिया और करंट तो ये पाथ से होता हुआ इधर तक आया है ना, तो इसका तो डायरेक्शन है, करंट बाहर तो नहीं चला गया भाई साहब। ठीक है, या उस डायरेक्शन में तो नहीं चला गया, इस डायरेक्शन में वायर से होता हुआ आया। सो हैज इट गॉट अ डायरेक्शन? आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम वेक्टर में क्यों नहीं लेते हैं? एनी रीजंस व्हाई? वेक्टर में हम इसका डायरेक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? व्हाई वी नॉट टेकिंग इट वेक्टरली? हाँ, वेक्टर लॉस क्या क्या है? देखो अगर मैंने एक छोटा सा तार लिया है इस पंखे तक, मतलब जस्ट पंखे तक पहुंच रहा है और स्विच को दिया तो ये चलने लगा। एक लंबा सा तार भाई साहब पूरे कामोटे को घुमाकर लगा के फिर मैंने फिक्स किया तो भी करंट पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए भाई साहब ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, इज करंट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? सो आंसर इज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाउएवर फॉर कैलकुलेशंस वी हैव टू टेक अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो सिंस करंट आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, सिंस करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट मे सीम टू अस that it is a vector quantity, but it is a vector quantity, but if it is a vector quantity it has to obey at least one law of vector addition। एक लॉ तो आपको obey करना ही पड़ेगा आपका, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जहां पे आप लिखते हो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका अंडर रूट, ये लॉ तो आपको obey करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, ओके। तो इन ऑल थ्री फॉलोइंग केसेस, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट है। ठीक है, कितने एम्पियर का करंट x होगा? 6 एम्पियर। लेकिन क्या यहाँ पे वेक्टर लॉ फॉलो हुआ? देखो समझो इस चीज को, अगर मैं अभी वेक्टर से इसको करूं, ठीक है, अगर वेक्टर से इसको करूं तो भाई साहब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है ना, तो मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, ये 3 एम्पियर है तो इसका कितना होगा 30, तो मतलब 3 cos 30 होगा ये, है ना, और ये भी कितना होगा बोलो 3 cos 30 होगा। लेकिन आर यू टेकिंग 3 cos 30 या 2 into 3 cos 30? क्या आप ऐसा ले रहे हैं? नहीं, हालांकि आंसर वही है, लेकिन आप ऐसे नहीं ले रहे ना भाई साहब। ठीक है, ओके। अभी एडजस्ट समझ लो 150 डिग्री हो गया, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा 75, और ये 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 into 3 cos 75। समझ में आ रहा है? ये रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भाई साहब 180 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब 2 into 3 cos 180। तो इसका मतलब दो ऐसे वायर्स जिनमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, हर बार आपके एंगल के हिसाब से अगर आपने करंट को वेक्टर फॉर्मेट में ले लिया तो हर एक का आंसर अलग होगा, लेकिन हर एक को आपको सेम ही आंसर मिलेगा 6 एम्पियर्स। समझ में आ रहा है?
In each of these cases, what you are going to get is only 6 amperes. ठीक है, you are not going to get either 3a cos 2 3a cos 30 or 2 3a cos 75 or 2 3a cos 90. सॉरी ये 90 होगा. ठीक है, इनमें से ऐसा कोई भी आंसर नहीं होगा, सबका आंसर होगा भाई साहब सेम, दैट इज 6 एम्पियर, ऑल ऑफ देम वुड. तो यहाँ पे डायरेक्शन भले ही है, लेकिन क्या डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सिंपल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ये फॉलो नहीं कर रहा है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हालांकि हम बोल रहे हैं कि ये डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो आपका लॉ एप्लीकेबल होता है वो इसमें नहीं हो रहा है. ठीक है, आर वी क्लियर? दैट इज वन रीजन. सो इन ऑल द थ्री फॉलोइंग केसेस इट इज सीन दैट ऑल्दो द एंगल between the direction of flow of current is different, the current x is equal to 6 amperes. Therefore, it obeys simple algebraic addition. Hence, the conclusion is electric current is treated as a scalar quantity. ठीक है, it does not obey the law of vector addition. ये भाई साहब वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए अपन इसको स्केलर ही लेंगे. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. ओके, करंट डेंसिटी. अभी हमको खींच तान के हर चीज को वेक्टर बनाना है भाई साहब. ठीक है, तो अपन किस चीज को अभी वेक्टर बनाएं? जैसे आपने देखा ईडीएस इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे भाई साहब एरिया को आपने वेक्टर बनाया, फिर जाकर क्या निकाला, एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी निकाली जिसको अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. फिर अपन ने गॉसेस लॉ दिया भाई साहब, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे हम तमाम चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे हमारा एजम्पशन क्या था, एरिया को हमने वेक्टर बना डाला. ठीक है, एरिया वेक्टर मतलब ये कोई चीज एरिया है, इसको अगर मैं पुल करूं ऐसे तो ये हो गया एरिया वेक्टर. ठीक है, तो इसको अपन ने एक एरिया वेक्टर बनाया और दोनों के बीच में दैट इज ई और डीएस, इसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट किया विच इज गिविंग यू द फ्लक्स विच इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऐसा ही कुछ काम यहां पे भी हमको करना है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको ना कहीं जाकर वेक्टर का सहायता लेना ही पड़ेगा. द वेक्टर क्वांटिटी that can be associated with current is known as current density. जो वेक्टर क्वांटिटी हम करंट के साथ एसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट खुद ब खुद एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और हमने देखा है इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है. लेकिन अगर अपने को इसको वेक्टर बनाना है, सो द फॉर्मेट दैट वी हैव टू फॉलो इज करंट डेंसिटी. ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. कितना करंट ट्रैवल हो रहा है पर यूनिट एरिया, कितने यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना करंट ट्रैवल हो रहा है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी. एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ओके. सो अभी इसमें से कौन सा भाई साहब आपका वेक्टर हो जाएगा? इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया ए perpendicular to the direction of current, then mathematically the current density is defined as J is equal to I by A, which is ampere per meter square. ठीक है, so J भाई साहब आपका सेम होगा direction of current and A is perpendicular to the current flow. ये आपका करंट फ्लो का भाई साहब परपेंडिकुलर होगा. A will always be perpendicular to the current flow. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो ये एरिया हो गया ना, ये एरिया है और ये करंट है, तो करंट और एरिया के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये एरिया है, ये एरिया है ना भाई साहब, और ये आपका भाई साहब करंट का फ्लो है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो आपका भाई साहब दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, ओके. सो J दैट इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन A. ठीक है, I ऑब्वियसली विल बी इन एम्पियर्स एंड दिस विल बी इन मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो J इज द डायरेक्शन, J का जो डायरेक्शन होगा वो सेम एज I होगा एंड A जो होगा परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो. इफ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया, अब देखो भाई साहब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इस एरिया को ऐसे टेढ़ा कर दिया. ठीक है, टेढ़ा कर दिया अभी. ठीक है, तो अभी एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा जाएगा, है ना. एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया पे, तो हमने जैसे इसको टेढ़ा किया तो ये ऐसा हो गया. अभी करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. ये किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में. लेट्स से इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा. ठीक है, तब आपका जे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इसकी कितनी हो जाएगी? आई अपॉन, अभी देखो ए का अगर मैं आई के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालू तो क्या होगा बोलो? ए कॉस थीटा. ठीक है, ए कॉस थीटा. If I is flowing through an area A and the angle between the direction of flow of the current and the direction of the area vector is theta as shown in the figure, then mathematically the current density is defined as J is equal to I by A cos theta. J is equal to I by A cos theta. Are we clear to this one people? Okay, okay, okay.
एक मिनट हम, हाँ, therefore the current density and the area is known to us, then the current can be calculated as J into A, है ना। अगर अपने को भाई साहब J क्या होता है, करंट डेंसिटी अपॉन एरिया, तो अपने को भाई साहब अगर करंट डेंसिटी और एरिया मालूम है तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी 3 डायमेंशनल सरफेस, अगर भाई साहब 3 डायमेंशनल सरफेस है तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी ए, हर डायमेंशन में, ठीक है, J इंटू डी ए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो करंट डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, तो आपका J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे I का कितना हो जाएगा, बोलो I, ठीक है, और A का कितना हो जाएगा, L रेस टू 2, बाकी सब तो जीरो हैं, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं भाई साहब M, ठीक है, L रेस टू -2, T रेस टू 0 और I, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मोर द करंट इन अ कंडक्टर द हायर विल बी द करंट डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा आपका करंट होगा उतना ज्यादा आपका करंट डेंसिटी होगा। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड स्केलर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसका क्या है, जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, करंट डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट इन द डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ठीक है। तो करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सिस्टम्स में। ओके ओके ओके, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, consider that the temperature of an isolated iron rod is increased up to a certain level, ठीक है। अभी समझो भाई साहब यहाँ पे एक आयरन रॉड है और इसके टेम्परेचर आइसोलेटेड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली आइसोलेटेड, और ये आयरन रॉड है और इसके टेम्परेचर को आप बढ़ा दें, ठीक है, इट इज इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लेवल। एज द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, the thermal agitation of the free electrons in the rod will be increasing gradually, ठीक है, धीरे धीरे भाई साहब इसका थर्मल एजिटेशन भी बढ़ता रहेगा, है ना, थर्मल एजिटेशन बढ़ता रहेगा, मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पीड से मूव करेंगे, इनका वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, एंड दिस इन टर्न विल इंक्रीज द थर्मल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इससे क्या बढ़ेगा भाई साहब, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, हेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन रैंडम मोशंस। तो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ताबड़तोड़ मोशन में आ गए, क्योंकि आपने एनर्जी दी है तो सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। Since the electrons are in random motion, it is possible that the velocity of all electrons due to this thermal agitation points at different directions. तो अलग अलग वेलोसिटी में अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे सब के सब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, एंड हेंस द एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, इट इज पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस थर्मल। अभी देखो आपने कभी देखा है क्या कि किसी चीज को, किसी समझ लो ये मेटल है, अगर मैं इसको हीट दूंगा तो इसमें से करंट भी निकलेगा, ऐसा देखा है क्या, नहीं देखा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना भाई साहब, और बाकायदा ज्यादा बढ़ रहा है ना। अभी इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एजिटेटेड हो गए हैं, वो और ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से करंट क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि यही हो रहा है कि हर एक डायरेक्शन का एक ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी नॉट स्पीड बिकम्स जीरो, वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से अगर आपने u1 u2 ये वेक्टर फॉर्मेट है, एंड un आर द इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी दिस टोटल वेलोसिटी अपॉन n, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या हो रहा होगा इसमें, ये u1 और समझ लो भाई साहब u5 का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होगा, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ये u2 और u4 का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होगा, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा ऑपोजिट पेयर मिल जाएगा जो उसके वेलोसिटी को कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे इतना डीपली क्यों जा रहे हैं, क्यों थर्मल एजिटेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि अपन मान रहे हैं चलो कि जब कंडक्टर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रॉन शायद बहुत धीमे धीमे रैंडम मूवमेंट कर रहे होंगे, तो चलो भाई साहब हम हीट कर देते हैं, तो अब तो जोर से मूवमेंट करेंगे, तो अभी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी क्या। किसी चीज को अगर मैं भाई साहब समझ लो ये कंडक्टर है और इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और इसको मैं अगर हीट दूं तो क्या ऐसा होगा कि ये गैल्वेनोमीटर मूव करने लगे, मतलब इसमें से करंट जाने लगे, नहीं होगा ये, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव इंक्रीज्ड the speed of random motion of electrons by thermally agitating this conductor, still you would not find any deflection in the galvanometer, which indicates that no current flows through the conductor. And why would this be? Because
In all possibilities, what has happened is that for every electron that is being agitated and flowing in a certain direction, you will have a corresponding electron which will move with an equal velocity in the opposite direction, because of which if you do a sum total of all these velocities, this will be zero. ठीक है, ओए विदित अंदर ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो, ठीक है। तो ये सारे जो आपके वेलोसिटीज होंगे ये हो जाएंगे जीरो। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके, हो गया भाई साहब तुम लोगों का? डन डन, एक मिनट। Okay, so बच्चा पार्टी, when the electrons are in random motion due to thermal agitation, thermal agitation मतलब भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो रैंडम मोशन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। ठीक है, when the electrons are in random motion, ठीक है भाई साहब, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन को लिया, ठीक है, are in random motion due to the thermal agitation, if we imagine, ठीक है, अगर भाई साहब अपन इमेजिन करते हैं यहाँ पे, if we imagine हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एक ऐसे इमेजिन कर लिया, देखो एक सिलेंडर के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, as shown in the figure, the net number of electrons crossing this area will be zero। ठीक है, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया विल बी जीरो, मतलब क्या? क्योंकि आपका करंट भाई साहब जीरो आ रहा है। ठीक है, आप हीट करके किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं लेकिन करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई साहब एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है उसका ही इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहा है, उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैंने ले लिया तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतनी वेलोसिटी से इधर भी जा रहे होंगे, इसीलिए तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो जीरो हो रही है। ठीक है, ओके, हम इस चीज को यहाँ पे क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, और वेलोसिटी को हम तभी समझ सकते हैं जब यहाँ पे वेलोसिटी से ना होते हुए करंट को समझ पाए। ठीक है, ओके, सो दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जितने भाई साहब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं उतने लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसी के वजह से भाई साहब आपका करंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, since no net charge is crossed the hypothetical area, it can also be said that the net current through this area will be zero। तो net current इस एरिया से कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, that is why an isolated conductor doesn't give an electric shock। तो किसी कंडक्टर को अगर आपने हीट किया है तो आप अगर उसको छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। ठीक है, it will not give you a electric shock। ठीक है, otherwise there is a flow of electrons, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे देखो इस कॉन्सेप्ट को हम खारिज कर रहे हैं कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो करंट जनरेट होता है, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं लेकिन करंट नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि हर वो इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है उसका ही एक काउंटर पार्ट इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो हो रही है, जिसके वजह से आपका नेट करंट भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, here the concept of net current being zero is not because electrons are not moving, here the concept of net current being zero is because electrons, the number of electrons moving towards right is equal to the number of electrons moving with the same velocity towards left। ठीक है, ये है भाई साहब करंट का जीरो होने का रीजन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, सो नेट करंट भाई साहब क्या हो जाएगा? जीरो। इस एरिया में नेट करंट कितना हो जाएगा? जीरो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एक्सेलरेशन, ठीक है, अभी हम बात करेंगे भाई साहब एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन? ठीक है, ओके, नाउ इफ द थर्मली हीटेड आयरन रॉड इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, अगर अपन ने किसी थर्मली हीटेड, समझ लो इसको भाई साहब एक आयरन रॉड है और इसको अपन ने भाई साहब हीट किया है, गर्म हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अफला तफली मची हुई है, लेकिन हर वो इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है उसका एक काउंटर पार्ट इधर आ रहा है, तो करंट तो आपका जीरो दिखाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, इफ अ थर्मली हीटेड आयरन रॉड इज नाउ कनेक्टेड विद अ बैटरी, अभी इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब मोशन कर रहे हैं और आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अगर आपने इसको थर्मली हीट नहीं किया होता तो क्या होता था? फिर भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती थी। थर्मली जब हीट कर दोगे तो भी होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि अभी आपके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि अभी आपके एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे। थर्मली हीट करने के वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड आपने बढ़ा दी है, अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो जिसके वजह से एक दूसरा स्पीड क्रिएट हो रहा है। ठीक है,
इन दोनों स्पीड्स के वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, जिसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ओके। आपने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा रहेगा, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर द न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस प्लस अल्फा इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये भाई साहब हो गया आप कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी नहीं, आपका कोफिशिएंट, ये नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों ने, चलो इसमें पढ़ोगे। ठीक है, ओके। डिग्री राइज इन टेम्परेचर, देन अलॉन्ग विद द रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ऑफ द बैटरी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई, दैट इज माइनस ई इंटू ई, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो किस से किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो जिस फोर्स की वजह से हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वाला फोर्स है, इसीलिए आपका भाई साहब नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, ओके। ड्यू टू दिस फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन लेट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग विद एन एक्सेलरेशन ए। फोर्स अगर लग रहा है, एक अनबैलेंस फोर्स लगता है तो उसका एक एक्सेलरेशन होगा, ये तो न्यूटन का भाई साहब सेकंड लॉ ही बोलता है। ठीक है, ओके। सो इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m, तो हमको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास m हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m, सो दैट विल बी माइनस e अपॉन m। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इस एक्सेलरेशन का, दिस विल बी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इसका वेक्टर फॉर्मेट देखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। क्यों भाई साहब? ये क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, इसीलिए फोर्स से पैदा होता हुआ एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? तो आपका करंट डेंसिटी क्या हो गया, करंट अपॉन एरिया। अगर करंट और एरिया के अंदर आपका जो एंगल है वो थीटा का है तो कितना हो जाएगा, आई कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके ओके ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी अटेन होती है, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, तो जो चार्ज पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे v1 v2 v3 vn आर इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देन यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये सारा अपॉन n। ठीक है, आर द इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्यों? अभी तो आपने किया वो जीरो आ रहा था। हाँ, ग्रेट। और ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, इसके पहले जो आपने किया था वो रैंडम मोशन था। रैंडम मोशन हो या थर्मल एजिटेशन की वजह से हो, यहाँ पे जीरो ही आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में आ गए। क्या ये समझ में आ रहा है? जब रैंडम मोशन में है या किसी अगर कंडक्टर को आपने हीट दिया है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, लेकिन जितना इधर जा रहे हैं उतना इधर आ रहे हैं, जितना इस साइड जाएंगे उतना इस साइड, जितना इस साइड जाएंगे उतना इस साइड, तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगा, इसीलिए आपका करंट भी जीरो आ जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन connecting to a battery, all the electrons will be actually drifting in one direction. Okay, and since they are drifting in one direction, so now they cannot have a zero velocity और सबका velocity add होगा, कोई किसी का cancel ही नहीं होगा। ठीक है, all of the velocities will add, तो v1 v2 पूरा add होगा, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपका drift velocity और average velocity। ठीक है, so what is drift velocity और average velocity? ठीक है, drift velocity is basically what बोर्ड्स में भी पूछा गया है। ठीक है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपने अप्लाई किया तो चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला गया है, चार्ज पार्टिकल्स बोला गया है।
मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी से एक पॉजिटिव होल भी इधर मूव करेगा, ठीक है। इसका डिस्कशन अपन करते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यही हो रहा है। जिस वेलोसिटी से बस ये चिटक के जाएगा, उतनी वेलोसिटी से ये पीछे आएगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अभी अपन ने अगर वेलोसिटी की बात की है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम्स विद अ कंपोनेंट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर अपन ने भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, समझ लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, thus the force on the electrons will act towards the right। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स उस तरफ लगेगा, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट। ये तो अपने देखा है कि F क्या होता है आपका, माइनस E इंटू ई होगा भाई साहब, ठीक है। अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी u1। समझ लो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन को थर्मल वेलोसिटी मिली है, मतलब आपने उस कंडक्टर को हीट किया है, जिसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, u1 डायरेक्शन में, ठीक है। अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग विद अ थर्मल वेलोसिटी u1 फ्रॉम अ पॉइंट A एंड गेट्स कोलाइडेड विद एन एटम ऑफ द मटेरियल एट अ पॉइंट B। और भाई साहब B में इसका एक कोलिजन होता है। लेट्स से इतना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, λ1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इसको टाइम कितना लगा है, τ1, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? u1 is the velocity with which it started and the first collision happened when it had traveled for a time τ1 and traveled a distance λ1, ठीक है। then the first collision happened, ठीक है। okay, at a point B the velocity of the electron changes to v1। तो भाई साहब इसका velocity अभी कितना हो गया, v1, ठीक है। because of the force due to the electric field in between point A and B the electron doesn't suffer any collision, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसने कोई कोलिजन नहीं हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब रिलैक्स है, ये अपने ही मोशन में है, ठीक है, थर्मल एजिटेशन के मोशन में है और जाकर इसके साथ टकरा रहा है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन टू कोलिजन्स, इसी को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। खैर ओके, द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फ्री पाथ। इस पाथ को अपन क्या बोलेंगे, फ्री पाथ, और इस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। लेट λ1, λ2, λ3 एंड λn आर द इंडिविजुअल फ्री पाथ्स ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भाई साहब आपके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जैसे टक्कर हुआ तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई u2 और इसकी वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है। तो ये भाई साहब इधर से जा रहा है और ये λ2 ट्रैवल किया और फिर जाकर एक से टकराया, ठीक है। तो लेट्स से, और ये τ2 लगा, ठीक है। इस तरह से भाई साहब चल रहा है कोलिजन्स। तो अगर हम ऐसा देख लें कि दीज आर द इंडिविजुअल फ्री पाथ्स ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इतने भाई साहब पाथ अपॉन n डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो λm लेते हैं अपन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। ये हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, τ1 या τ2, इट इज डिनोटेड बाय τ, ठीक है। और ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब जहां पे कोई कोलिजन्स नहीं हो रहा है। समझ लो पहले वाले पार्टिकल ने λ1 ट्रैवल किया विदाउट एनी कोलिजन, दूसरे वाले पार्टिकल ने λ2 ट्रैवल किया विदाउट एनी कोलिजन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स से द nth पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ λn बिफोर इट कोलाइडेड विद अ डिफरेंट एटम और इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल व्हाटएवर। तो ये जो सारे कोलिजन्स है इसको सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाय n कर दिया, तो आपका क्या आ गया, मीन फ्री पाथ। आदित्य बिल्कुल भी मन नहीं है तेरा, ठीक है। दिस इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चा बाड़ी, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि भाई साहब एक्सेलरेशन कितना होगा, E बाई एम। एम क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E हो गया कैपिटल E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और E हो गया आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे और ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक्सेलरेशन A विल बी माइनस E बाई एम हो जाएगा, ठीक है। सिंस दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो भाई साहब ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट क्यों होगा बता सकते हैं, व्हाई विल दिस एक्सेलरेशन बी कांस्टेंट, सिंस दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बोलो ना, बोलो बच्चा बाड़ी, बहुत आसान है। अरे भाई साहब इन चीजों को देखो ना, क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होगा, नहीं होगा। क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है।
तो वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, सिंस दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट द वेलोसिटी v1 कैन बी रिटन एज, तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। नाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, v1 प्लस v2, ये अंडर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रैंडम मोशन में या थर्मल एजिटेशन का नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आपका कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन n, ठीक है। तो अभी v1 क्या होता है, v1 भाई साहब u1 प्लस a टाउ 1 है, ठीक है। तो क्या अपन ये भी लिख सकते हैं u1 प्लस u2 अपॉन n, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस दिस, देखो भाई साहब v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये होता है ना। तो अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो मतलब v1 प्लस v2 इस तरफ लिख रहे हैं, प्लस ऐसा करते करते कहां तक गए, vn बाई n कर दिया, ठीक है, इसकी जगह पे ये लिखा, ये हो गया आपका एवरेज फाइनल वेलोसिटी। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस u2, ऐसा करते करते भाई साहब un तक गए, अपॉन n कर दिया, प्लस a जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है सबके लिए सेम रहेगा, ये याद रखिए, ये सबके लिए भाई साहब सेम रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबके लिए चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज सेम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेम, ठीक है। तो ये आपका सबके लिए सेम रहेगा, तो इसीलिए ये ए ही लिखा हमने, ठीक है। और क्या लिखा भाई साहब, सबका टाइम, रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा, तो t1 टाउ 1 प्लस टाउ 2, ऐसा करते करते भाई साहब टाउ n तक, ठीक है, टाउ n तक अपॉन n, ये हो गया भाई साहब आपका एवरेज टाइम, ठीक है। एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम, ठीक है। क्लियर है, नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, नाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज दिस। तो अभी देखो यहां पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको अपन 0 ले लेंगे, क्यों, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई साहब। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चाहे थर्मल एजिटेशन की वजह से हो या रैंडम मोशन की वजह से हो, उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो वो तो आपने देखा कि वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसके पहले अपन ने देखा u1 u2 करेंगे अपॉन n करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या भाई साहब, ये वाला पूरा जो फैक्टर है ये आपका क्या हो जाएगा, 0। सो ऑल दैट यू आर लेफ्ट विथ इज दिस, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ एवरेज, तो आपका v एवरेज कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी एवरेज विल बी इक्वल टू a टाउ एवरेज, ठीक है। v एवरेज इज इक्वल टू a टाउ एवरेज, देयरफॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज vd इज इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू a टाउ एवरेज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है, ओके। vd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v एवरेज दैट इज माइनस e टाउ एवरेज बाई m। The negative sign refers to the fact that the direction of the drift velocity is always opposite to the electric field. तो drift velocity जो है हमेशा electric field के opposite ही होगी। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके। तो आपका drift velocity का वैल्यू कितना हो गया बच्चा पार्टी, drift velocity will be equal to a into tau, that is average relaxation time। इसको अपन average velocity भी बोल सकते हैं, और अगर अपन ने देखा भाई साहब यहाँ पे tau average है ना, a तो सबके लिए सेम ही होगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे v एवरेज या v ड्रिफ्ट वेलोसिटी या v एवरेज a इंटू टाउ ऑफ एवरेज, और a को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस e बाई m इंटू टाउ एवरेज, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो भाई साहब, रिलेशन बिटवीन vd एंड v, we know that the magnitude of drift velocity is how much vd, that is v average, that will be em by tau average, ठीक है, समझ में आ रही है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो भाई साहब आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, दिस इज इक्वल टू vd v एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू e by m into tau of average, since a small change in potential difference is defined as dv is equal to minus e dx, ठीक है, thus the magnitude of any potential difference can be written as, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो डेल्टा v बाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस ई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, ठीक है, ओके। अ स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा x, ठीक है। सिंस अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू dv, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। A small change in potential difference is EDX, then the magnitude of any potential difference can be written as
किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर अपन को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो ये लिखना है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लिखना है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस का तो अपन E इंटू डी एक्स या E डेल्टा एक्स ये लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। नाउ इन दिस केस सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड इज V एंड द लेंथ ऑफ द रॉड लेट्स से L है, अगर लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब E इज इक्वल टू V बाई डी होता है ना। तो यहाँ पे V और D मतलब ये L हो गया भाई साहब। इस कंडक्टर के लेंथ को हम इग्नोर करते हैं, we basically ignore this, we are only taking into consideration this conductor, ठीक है, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा V बाई L। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, VD की वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी, बल ना, बल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E कैपिटल E बाई M, ठीक है। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, टाउ एवरेज, चलिए भाई साहब टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, ठीक है, ओके। तो अगर भाई साहब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्लेस करते हैं, एक्चुअली में माइनस था ना, ये माइनस था ना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई साहब कितना आ गया, माइनस E। अभी V को अपन E को क्या लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू माइनस V बाई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस V बाई डी और ये हो गया M, ठीक है, V बाई L हो गया, सॉरी, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये हो गया आपका टाउ एवरेज, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो VD की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, EV टाउ एवरेज अपॉन ML, ठीक है, EV टाउ एवरेज अपॉन ML। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जिस पे सवाल बन सकते हैं, बनेंगे भी, आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर याद नहीं भी रहे तो बड़े आराम से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। कोई भारी भरकम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का मामला यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ईजिली डिराइवेबल है ये, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जो वेलोसिटी है, तो आपने देखा दो चार चीज़ों को अगर आप सही सही समझ लें, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है उसमें इनिशियल वेलोसिटी किससे इंपैक्ट हो रही है, या थर्मल एजिटेशन से या रैंडम मोशन से, जिसका भाई साहब एवरेज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, V एवरेज विल बी इक्वल टू A ऑफ टाउ एवरेज। A सबके लिए सेम, क्यों, क्योंकि A आपका होता है भाई साहब, व्हाट इज इट इज E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ गया, आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं, क्योंकि इतनी देर तक अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। नाउ लेट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, अभी आपने देखो जैसे दो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया A और A का, ठीक है। We know that due to electric field the average velocity of the electrons in the drift velocity कितना है भाई साहब, आपका VD है, ये आपका VD है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, VD इंटू dt हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो मेरे को अगर भाई साहब लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा इन टाइम dt और उसकी वेलोसिटी VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, VD इंटू dt, ठीक है, ओके। सो we know that due to the electric field the average velocity of the electrons यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, let two cross section areas be A, we know that due to the electric field the average velocity of the electrons in the drift velocity is how much, VD, let n be the number of electrons per unit volume of the rod and dq be the amount of charge that travels the distance between the two cross sectional times in dt, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका dq चार्ज है that travels between two cross sectional areas A, और ये हो गया आपका VD dt। नाउ dq भाई साहब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल्यूम कंटेन्ड बाय द टू क्रॉस सेक्शंस, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ठीक है, दैट इज dq, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल्यूम कंटेन्ड बाय द टू क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, ओके, इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा टोटल चार्ज, किसमें, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में टोटल चार्ज। क्या ये समझ में आ रहा है, dq विल बी द टोटल चार्ज, so number of free electrons in the volume contained by the two cross sections into charge of one electron, that will be dq। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। नाउ dq नत का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है, उस एरिया में मतलब वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम में कितना, भाई देखो यहाँ पे वॉल्यूम में कितना ना भाई साहब, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम पोर्शन कंटेन्ड बाय दीज टू क्रॉस सेक्शंस इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमने n ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमने n ले लिया इनटू आपका VDT बेसिकली क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये हो जाएगा आपका एरिया।
लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब वॉल्यूम। श्रेया वो पहला वाला स्विच ऑन करोगी क्या? थैंक यू। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पूरे जितने भी हैं वॉल्यूम इसमें, ठीक है, उसका है। इस छोटे से पोर्शन का कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा वी डी टी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वी डी टी इंटू ए, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कैंसिल होगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वी डी टी इंटू ए, ये हो गया भाई साहब आपका टोटल वॉल्यूम, समझ में आ रहा है, इंटू ई। तो एक्चुअली में ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब कैसा कैंसिल, या सेंटीमीटर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेगा और चार्ज, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच NeVDA इंटू डी टी, ठीक है। दिस विल बी DQ, समझ में आ रहा है भाई साहब, DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन्स VD, ठीक है। VD बेसिकली हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू A दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू DT। अभी करंट कितना होता है, करंट होता है DQ बाई DT, तो जैसे DT करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, A is the area of cross section and VD is the drift velocity। So अगर कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आप निकालेंगे, ठीक है। I आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। एरिया आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज VD, ये हो जाएगा भाई साहब आपका करंट दैट फ्लोस, ठीक है। यही आपका एम्पियर्स में आएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ओके, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपका ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने भाई साहब निकाला, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, आपका म्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बाई E, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, इसको अपन बोलते हैं मोबिलिटी, और मोबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है। म्यू है आपका मोबिलिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। क्लियर है, ओके। आपका भाई साहब अभी VD क्या हो जाएगा, VD विल बी इक्वल टू E, कैपिटल E बाई M, टाउ एवरेज ये अपन ने देख लिया भाई साहब, ठीक है। तो इसी को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, VD की वैल्यू हो गई E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ एवरेज अपॉन M अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, तो E बाई M टाउ एवरेज इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो म्यू आपका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, टाउ एवरेज विच इज बेसिकली द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट सर्टेन कैलकुलेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई। समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, हो गया आप लोग का? हो गया, डन हो गया ना भाई साहब, घर जावंती। चलो एक मिनट, हाँ ओके। सो बच्चा वाटी व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ, करंट होता क्या है, ठीक है। करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेंसिटी कितनी होती है J बाई A, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने देखा भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हाउ मच, VD इज इक्वल टू E कैपिटल E M इंटू टाउ ऑफ एवरेज, ठीक है, टाउ एवरेज होगा, ठीक है। और मोबिलिटी, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव, हाँ ठीक है, ई बाई, ठीक है, और टाउ एवरेज, और आपका भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ व्हाट इज करंट, करंट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई साहब क्या हो जाएगा, NeAVD। समझ में आ रहा है ये, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम of the conductor, E is basically the charge of an electron, A is the area,
Vd is basically the drift velocity, ठीक है. So these are things that are already known to us. Okay, now we'll talk about Ohm's law और इसका वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है. ओके ओके, इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एक ही जन है ना. ओके, इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब क्या हो जाएगा? द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज जीवन में कोई काम भाई साहब शांतिपूर्वक कर लेंगे? नहीं. पंद्रह मिनट बाकी हैं, बिठा के रखूंगा. अगले 5 मिनट में आपकी अगर शांति नहीं बनी रही तो, ठीक है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द टाइम, ये हमने पढ़ा भाई साहब, ठीक है. और क्या पता? करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा जे ए, और आई आपका क्या हो जाएगा? अगर एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में है तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड जे इनटू डी ए, ठीक है. डायमेंशन फॉर्मूला आपका ये हो गया. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी एवरेज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम टाउ एवरेज, मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. फ्री पाथ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. कितने अच्छे बच्चे हैं भाई साहब, सो गए हेड डाउन करके. ठीक है ठीक है, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नर्सरी का. ओके ओके, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n अपॉन n, ये हो गया मीन पाथ. और आपका भाई साहब टाउ क्या हो जाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है. तो रिलेशनशिप बिटवीन वी डी एंड वी, वी डी इज इक्वल टू ई वी एम एल टाउ एवरेज, ठीक है. क्लियर है? ओके. रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई, तो आपका आई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज मोबिलिटी. तो आपका मोबिलिटी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक आपका वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ई और ई कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी. तो आपका वी डी कितना आया भाई साहब? दिस. आई कितना आया? ये, ठीक है. ओके, नाउ यहां से अपन ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है. ओके, आई की वैल्यू इतनी आई है भाई साहब, ठीक है, एन ई ए वी डी. बाय रिकंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस वी गेट व्हाट भाई साहब? आपका आई का वैल्यू कितना हो गया? अगर हम यहाँ पे वी डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसमें? इसमें, ये आपका, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? दिस कैन बी रिटन एज एन ई ए वी डी की वैल्यू हो गई ई वी टाउ एवरेज अपॉन एम इंटू एल, ठीक है. क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? टाउ एवरेज अपॉन एम इंटू एल. तो वी का वैल्यू कितना हो गया? v का, तो दिस विल बी एन ई ए ई वी टाउ एवरेज अपॉन एम इंटू एल. तो v की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया आपका i. तो v की वैल्यू कितनी हो गई? दिस विल बी एम एल इंटू आई अपॉन, यहाँ पे हो गया आपका कितना? n e का स्क्वायर, e का स्क्वायर a, ठीक है, टाउ एवरेज, ठीक है. समझ में आ रहा है भाई साहब? n e का स्क्वायर a टाउ एवरेज, ठीक है, इनटू भाई साहब आई. इसी को अपन क्या बोलेंगे? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. देखो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आई है? एन ई ए वी डी. और वी डी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? e इंटू वी अपॉन एम एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये वोल्टेज अप्लाइड है. और ये हो गया आपका टाउ एवरेज, ठीक है, ये टाउ एवरेज. ये ई वी बाई एल कहां से आया? क्योंकि आपका कितना था? वी डी था भाई साहब आपका ई कैपिटल ई बाई एम था, और ई होता है आपका क्या? v बाई एल. तो अपन ने सिर्फ ई की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया? v बाई एल, और ये आपका टाउ एवरेज था, ठीक है. क्लियर है? तो इतना आ गया भाई साहब. ओके, अगर अपन ने यहाँ पे भाई साहब क्या कर दिया? वी डी को क्या किया? रिप्लेस किया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? i विल बी इक्वल टू एन ई ए, यहाँ पे हो गया e इंटू वी टाउ एवरेज अपॉन m इंटू एल, ठीक है. ये हो गया एन ई का स्क्वायर, एन ई का स्क्वायर हो गया भाई साहब, ठीक है. और तो दिस विल बी एन ई का स्क्वायर ए वी टाउ एवरेज एम इंटू एल, ठीक है. इस v को अगर हमने आइसोलेट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? i इंटू एम एल बाई एन ई का स्क्वायर ए टाउ एवरेज इज इक्वल टू v, ठीक है. क्लियर है? ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे
आपका m और l, m आपका मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, e इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये टाउ क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इस फैक्टर को और इस फैक्टर को अपन लेते हैं तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन चारों फैक्टर्स को लेते हैं तो आपका भाई साहब ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए आप v को क्या बोलते हैं, और बाकी l और a ये तीन फैक्टर से देखो आप इससे वो कोरिलेट करो, v कितना होता है आपका i इंटू r होता है, और r क्या होता है रेजिस्टिविटी इंटू l बाई a इंटू i होता है। अब इसको कंपेयर करो, देखो इस l और a को छोड़ दो तो जो बचता है वो क्या है आपका m बाई एन ई का स्क्वायर टाउ एवरेज, ठीक है, ये बचता है भाई साहब, और यही हो जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी। दिस विल बी बेसिकली रेजिस्टिविटी। क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है। सो V का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा किसके साथ, I के साथ, एंड दिस इज ओम्स लॉ। हो गया, बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ में आ गया भाई साहब। तो यही आपका ओम्स लॉ देखो, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी आप ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सब जो भी आया, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लेकर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही हमारा ओम्स लॉ है। सो at a particular temperature the voltage across a conductor, or rather the current flowing through a conductor, is directly proportional to the applied voltage across the conductor, ठीक है। क्लियर है, V is directly proportional to I, ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ओके, सो ओम्स लॉ भाई साहब बोलता क्या है, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं भाई साहब, कोई नया चीज नहीं है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द voltage across a conductor, this law states that the voltage across a conductor, ठीक है, is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remains constant. Okay, अब देखो आता है भाई साहब टेम्परेचर का मामला, ठीक है। ऑल फिजिकल कंडीशंस मतलब प्राइमरली आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों भाई साहब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने एक फैक्टर लिया हुआ था जहां पे आपने u आपका जो था उसको कैंसिल आउट किया था, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये u इम्पैक्ट होता है, और ये u इम्पैक्ट करके कोलिजन्स को इम्पैक्ट करेगा, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। किसी भी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी पैरेलली बढ़ता है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए ये आपका वोल्टेज और करंट एक लीनियर ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, लीनियर ग्राफ मिलेगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने देखा भाई साहब V is directly proportional to I, और डेल्टा V is equal to IR, where R is the resistance of the conductor. The above relation is of type Y is equal to mx, and hence the plot of V versus I will be a straight line passing through the origin with slope आपका कितना हो जाएगा, m is equal to tan theta, that will be equal to delta V by I, that is R is equal to constant. Electrical resistance is a property of a conductor due to which it resists the flow of electrical current through it. तो रेजिस्टेंस भाई साहब है क्या, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो R इज इक्वल टू V बाई I होगा, और इसको अपन ओम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज शोन आइडेंटिफाई द पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो कहां पे आपका भाई साहब देखो, आपने इसमें वोल्टेज और करंट की जगह पे करंट और वोल्टेज की प्लॉटिंग की है, और आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका पोर्शन यहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस का है। CD will be negative resistance. Why? Because with increase in voltage you are seeing that there is a decrease in current, ठीक है, ठीक है। तो आपका भाई साहब CD हो जाएगा डिस्कशन, नेगेटिव रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्ड टू डिक्रीजिंग करंट, ठीक है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस भाई साहब किसको कॉरेस्पॉन्ड करे, डिक्रीजिंग करंट विद इंक्रीज इन वोल्टेज, एंड द गिवन फिगर द पोर्शन CD represents this. The option A is correct. The answer is CD. Slope is negative. ठीक है? Okay. Vector form of Ohm's law. Okay. Now we know that the expression of drift velocity. भाई साहब अपना drift velocity कितना है? We have seen that the drift velocity is how much, people? Drift velocity is given by VD is equal to EVML tau average. ठीक है, ये अपन ने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वी ऑल्सो नो दैट द करंट कैन बी रिटन एज, ठीक है, करंट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू NEA VD, ठीक है। बाय कंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस NEA
ठीक है, ई वी बाई एम एल टाउ एवरेज हो जाएगा, ये आपका वी डी हो गया, ठीक है। सो वी बाई एल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखो भाई साहब, ये वी और ये हो गया भाई साहब आपका एल, वी बाई एल। अगर हम इतने पोर्शन को लें वी बाई एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एम एल, तो एम इंटू आई अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज, ये हो जाएगा भाई साहब आपका वी बाई एल। समझ में आ रहा है, ठीक है। बाई कंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस वी बाई एल विल बी दिस, और वी बाई एल भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, और ये हो जाएगा अपॉन आई बाई ए, ठीक है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी आर डिफाइंड एज E इज इक्वल टू वी बाई एल एंड J इज इक्वल टू आई बाई ए रिस्पेक्टिवली, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V बाई एल को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। V बाई एल को लिख दिया भाई साहब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आई बाई ए को क्या लिखेंगे अपन, J, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब I बाई ए मतलब V बाई एल आपका क्या हो जाएगा, I बाई ए, ठीक है। ये L को अगर मैंने इधर लिया तो ये V हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल, आपका रेजिस्टेंस मतलब ये L बाई ए, रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, यही तो होता है ना रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। तो आपका भाई साहब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी विल बी एम एन ई का स्क्वायर टाउ एवरेज, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये फिर से देख लेते हैं भाई साहब एक बार और, ठीक है। यहाँ पे देखो वी डी की वैल्यू क्या आई है, वी डी की वैल्यू वी हैव सीन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना है भाई साहब, वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ एवरेज अपॉन एम इंटू एल। ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वी इज द अप्लाइड वोल्टेज, टाउ एवरेज इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और अपन ने आई देखा भाई साहब क्या है, एन ई वी डी, और भाई साहब कितना हो गया आपका ए, ठीक है, एन ई वी डी ए, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट अपन ने किया था, ओके। अगर अपन ने भाई साहब यहाँ पे आई को क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी की जगह पे क्या लिखा भाई साहब, ई वी टाउ एवरेज अपॉन एम एल इंटू ए, ठीक है। तो अगर अपन ने इसमें से v बाई एल को ले लिया और इस पूरे चीज को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, i इंटू एम बाई एन ई का स्क्वायर टाउ एवरेज, और ये हो गया a, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू v बाई एल, ठीक है। और v बाई एल आपका कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका करंट, और ये हो गया आपका क्या, देखो यहाँ पे आपका हो गया एल बाई ए, सॉरी एम इंटू आई बाई ए ना, एम है यहाँ पे आई बाई ए, आई बाई ए आपका क्या होता है, हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी इज आई बाई ए। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको जे लिख सकते हैं करंट डेंसिटी, और ये कांस्टेंट हो गया, इसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रेजिस्टिविटी। दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपकी कितनी हो गई, m that is mass of electrons, number of electrons per unit volume, electron charge that is 1.6 into 10 raised to minus 19 का स्क्वायर, और ये हो गया टाउ एवरेज, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किन चीजों पे डिपेंड करेगी भाई, ये तो सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए कांस्टेंट होगा, दैट इज 9.1 into 10 raised to minus 31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सारे मटेरियल्स में कांस्टेंट ही होगा, दैट इज 1.6 into 10 raised to minus, जो डिफर होगा वो ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसी की वजह से आपको हर एक कंडक्टर का अलग रेजिस्टिविटी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये अलग होगा, ठीक है। सो ये जो क्वांटिटी है इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई का स्क्वायर टाउ एवरेज। इसीलिए अपन बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो कंडक्टर के डायमेंशंस मैटर करते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी में कंडक्टर के डायमेंशंस मैटर नहीं करते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे, और किस मटेरियल में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स क्या होता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल में। क्या ये समझ में आ रहा है? सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ओके, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी आर डिफाइंड, अभी हम ई को कैसे डिफाइन करेंगे, वी बाई एल और जे को आई बाई ए रिस्पेक्टिवली। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज
रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। अभी रेजिस्टिविटी आपका स्केलर है या वेक्टर होगा, कोई वेक्टर कंपोनेंट उसमें है ही नहीं, देखो ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो भी हैं वो सारे के सारे भाई साहब आपके क्या हैं, दिस आर ऑल स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है, तो ये आपका स्केलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू आपका रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है I अपॉन A, ठीक है, ओके, सिंस 1 अपॉन P इज कंडक्टिविटी, ठीक है, 1 अपॉन रो आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं अपन, ठीक है, कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जितना आपका कंडक्टिविटी कम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, और जितना आपका रेजिस्टिविटी कम होगा उतना ज्यादा आपका कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, सो अपन ये इसको क्या लिख सकते हैं, J कैन ऑल्सो बी रिटन, तो हमने क्या लिखा भाई साहब, यहाँ पे देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू जे, ठीक है, जे को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, रो इंटू ई, ठीक है, एसआई यूनिट सीमेंस या मीटर्स, सीमेंस पर मीटर, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस पीपल। ओके, सो अपन ने देखा भाई साहब V की वैल्यू कितनी होगी, ml n e स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू A इंटू आई, तो V बाई आई कितना हो गया, इतना, वी नो दैट ये आपका रेजिस्टेंस होता है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ml n e स्क्वायर, ठीक है, टाउ A, ठीक है, समझ में आ रहा भाई साहब, ये m यहाँ पे क्या है भाई साहब, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, l इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e आपका चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, by assuming temperature to be constant all the quantities at the RHS of this expression except n and a are constant, therefore देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, ठीक है, अगर R की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, R की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो गई आपकी, R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू A, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या तो ये बढ़ेगा या तो ये बढ़ेगा, जो भी होगा इसमें चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन से आपके लेंथ और एरिया के डायमेंशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस में भी चेंजेस आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस में चेंजेस सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगा, ना ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होंगे, और ना ही चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, और ना ही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, सो आप यहां पे बोल सकते हैं कि आपका जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m n e स्क्वायर टाउ एवरेज, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एवरेज वेलोसिटी, सॉरी अपना एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, क्लियर है, तो अपन अगर इसको देखें तो हम यहां पे बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, ओके ओके ओके, electrical resistivity is defined as the resistance offered by the material per unit length for unit cross section, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, तो आप भाई साहब यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन, तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बोलो m n e स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A, ठीक है, द टर्म इन द पैरेंथेसिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, तो ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, दैट इज ओम मीटर, ठीक है, देयरफॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम्स हाउ मच, R इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A, रो इनटू L बाई A, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर एंड द मटेरियल इटसेल्फ, टेंपरेचर एंड द मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है, ओके, कंडक्टर्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, तो अभी देखो जैसे आप टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो व्हाट एक्चुअली विल चेंज, ठीक है,
व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू चेंज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, जब भी आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, when the temperature of a conductor increases, ठीक है, more electrons become free and hence the number of density of free electrons increases, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, देखो होता क्या है, कंडक्टर, ठीक है, आपका जो कंडक्टर होता है ना, उसमें ऐसे बैंड्स होते हैं, देखो इसको अपन बोलेंगे कंडक्शन बैंड, दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड, एंड इसको अपन बोलेंगे भाई साहब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे ना तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द एटम्स ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपके थर्मल एजिटेशन की वजह से कोलिजन्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। देयरफॉर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, तो आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब अभी ठप टूप, पहले तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था एक पे दूसरे, लेकिन अभी रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ गए हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा भाई साहब आर क्या है, m इंटू एल, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इफ दिस इज बेसिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, आपकी दिस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ये जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा आपका रेजिस्टेंस भाई साहब इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज दिस ml, n number of electrons per unit volume into charge of an electron into average relaxation time into area. Now since the number of collisions are increasing, obviously by increasing, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अगर कंडक्टर को टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई साहब, आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता जा रहा है। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, ये आपका कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिस विल इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो आपका ये बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा और ये आपका भाई साहब कम हो जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा, तो आपका भाई साहब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी। Since the conductor has plenty of free electrons per unit volume, so the increase in n doesn't have much effect on RNP. तो दोनों भी इफेक्ट होंगे, देखो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टर हैज प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो समझ लो अगर मैं ना एक क्राउड की बात कर रहा हूं, जैसे अगर समझ लो मिलियंस हैं तो उसमें 10,000 शायद बढ़ गए, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब समझ लो आपके टेम्परेचर बढ़ाने से 100,000 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन ऑलरेडी क्राउड भाई साहब 10⁻⁶ है, मिलियंस के इसमें है, तो इस 1000 के बढ़ने से इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो है आपके कोलिजन का। तो दोनों का भी फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए होगा, लेकिन यहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे वो ड्यू टू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स काफी कम ही होंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपको ये वाला इफेक्ट दिखेगा, ये वाला इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज एन इफेक्ट व्हिच यू कैन फोरसी, दिस इज एन इफेक्ट व्हिच कैन नॉट सी, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। सो हेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट यू विल नोटिस इन अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, effect of temperature on resistance and resistivity, the graph representation of the resistivity with temperature for conductors and alloys are shown below। तो अगर आप देखोगे रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको, लेट्स से कॉपर का, और यहाँ पे भाई साहब मैग्नेनिन, नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटिन फॉर अलॉयज, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स एंड अलॉयज आर शोन बिलो। कंडक्टर्स का भाई साहब आपका रेजिस्टिविटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा विद इंक्रीज रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर अलॉयज देखेंगे हम तो यहाँ पे मैग्नेनिन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, जैसे आप देखोगे ज्यादा करके आपके गीजर के जो वायर्स होते हैं वो नाइक्रोम से बने होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं उसमें भी नाइक्रोम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इनके टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती है, ठीक है, नॉट मच ऑफ एन इफेक्ट, ठीक है, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm if it is melted and stretched to n times of its original length, its new resistance will be R ohm, उसका
ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसको भाई साहब हमने स्ट्रेच कर दिया है n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी इनटू L बाई A। तो आपने L को कितना टाइम्स कर दिया? n टाइम्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, NR, ठीक है, NR हो जाएगा भाई साहब, n स्क्वायर R होगा, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस, ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे आपका रेजिस्टेंस है R ओम का, इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स। देखो ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, लेंथ, ये किसके कॉस्ट पे बढ़ रहा है? एरिया के ऊपर बढ़ रहा है ना। देखो अगर समझ लो ये है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, इस आप बोलेंगे इसका लेंथ बढ़ गया है, लेंथ तो बढ़ गया है लेकिन किसके वजह से बढ़ा है? एरिया, तो एरिया भी उतना ही कम हो गया है ना, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। सो आपका रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, आपका भाई साहब रेजिस्टेंस होता क्या है? R, what is resistance बच्चा पार्टी? Resistance is equal to rho L upon A, that initially the rod has a length L and cross sectional area A, therefore the resistance of the rod कितना हो जाएगा? Rho L by A। if it is melted and stretched to n times of its original length, अपन ने भाई साहब इस लेंथ को बढ़ाकर कितना कर दिया? n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो लेट्स से यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया है? A2, ठीक है, ओके। लेट इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम A2 सिंस द वॉल्यूम ऑफ द रॉड रिमेन्स द सेम। तो वॉल्यूम तो भाई साहब सेम ही है, तो वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L। तो A इंटू L, यहां पे देखो A इंटू L, दिस विल बी इक्वल टू A2 इंटू क्या हो गया? NL, है कि नहीं? ये वाला वॉल्यूम कितना है? A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L, ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A2 इंटू N टाइम्स L, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में बराबर होंगे, क्या मैजिक भाई साहब, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में बराबर होंगे, है कि नहीं, ठीक है। सो अगर हम इसको करते हैं तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? A बाई L। समझ में आ रहा है ये? ओके। न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना होता है? रेजिस्टेंस भाई साहब क्या होता है? देखो क्योंकि मटेरियल तो आपने चेंज किया नहीं है, मटेरियल अगर आपने चेंज किया नहीं है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रेजिस्टिविटी इंटू L बाई A, ठीक है। आपका भाई साहब रेजिस्टिविटी हो गया ये, L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? अभी देखो L बाई A है, ठीक है। L की वैल्यू, अभी नया रेजिस्टेंस का L का वैल्यू कितना हो गया? L डैश मतलब NL हो गया, ठीक है। और नया एरिया कितना हो गया आपका? A बाई N, ठीक है। तो ये कितना हो गया? रेजिस्टिविटी, ये N गया ऊपर, N स्क्वायर L बाई A, ठीक है। तो ये हो गया N स्क्वायर इंटू रो L बाई A। अभी रो L बाई A क्या था? ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R, क्लियर है? ओके। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, its new resistance and specific resistance become respectively, both remain the same, 1.1 times 1.1 times 1.2 times 1.1 times 1.21 times same। A wire of a certain material is stretched slowly by 10%, एक वायर को अपन ने 10% से बढ़ाया है, ठीक है। its new resistance and specific resistance क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन चीजों से बना हुआ है? मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारी चीजें भाई साहब सेम रहेंगी, नहीं एरिया नहीं। टाउ एवरेज कोलिजन आपका, ठीक है। ये कभी इंपैक्ट होता है जब आप टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। आपने इसको स्ट्रेच किया है, टेम्परेचर नहीं दिया है, तो रेजिस्टिविटी आपकी चेंज नहीं होगी। तो तीनों में से, इन दोनों में से कोई एक होगा, रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। ओके, अभी आपने भाई साहब 10% से बढ़ाया है, ठीक है। तो 10% से बढ़ाया है भाई साहब, स्ट्रेच्ड बाय 10%, तो आपका लेंथ अभी कितना हो गया बोलो? न्यू लेंथ कितना हो गया? 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो 10 बाई 100 इंटू L, तो ये हो गया भाई साहब आपका L प्लस 0.1 L, सो दैट विल बी 1.1 L। ये हो गया भाई साहब आपका L, नया L डैश, ठीक है। अभी आपका एरिया भी कम होगा, है ना। एरिया तो कम होना ही है क्योंकि आपने बढ़ाया है किसको? एरिया को कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ाया है ना, ठीक है। तो एरिया कितना कम होगा भाई साहब? समझ लो वही N1 इंटू L1, ठीक है, सॉरी L1 इंटू A1 इज इक्वल टू L2 इंटू A2, वही सेम चीज हो गई भाई साहब। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? L1 इंटू A1 बाई L2, ठीक है। आपने भाई साहब L1 मतलब आपका ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे कितना है बोलो? 1.1 L,
है कि नहीं, L2 की वैल्यू, और A1 भाई साहब समझ लो A है, ठीक है, A1 आपका समझ लो A है भाई साहब, ठीक है। तो आपका A2 का वैल्यू क्या हो गया ये, ठीक है। आपका भाई साहब पहला रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टिविटी इंटू L बाई A, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो, ठीक है, रेजिस्टिविटी इंटू L, L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 1.1 L अपॉन A, नया A क्या हो जाएगा L इंटू A, L और L भाई साहब कट हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका A और यहाँ पे A बाई 1.1, तो इधर कितना हो गया बोलो रो 1.1 का स्क्वायर L बाई A, ये जो है रो L बाई A ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था भाई साहब, ठीक है, इंटू 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 1.21 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 1.21 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी आपकी भाई साहब, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी भाई साहब आपकी सेम रहेगी। सो यहाँ पे देखो L डैश आपका कितना हो गया, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव सीन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज एंड टाइम्स, तो अगर आप करेंगे इसको तो 1.21 R हो जाएगा, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। ओके भाई साहब क्वेश्चन आता है, द मासेस ऑफ द वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 and their lengths are in the ratio of 5:3:1, the ratio of the electric resistance, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, कॉपर है मतलब आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है, masses of the wires are in the ratio of 1:3:5 and their lengths are in the ratio of 5:3:1, ठीक है, the ratio of electrical resistance क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि इसका मास कितना है, पहले वाले का मास है x, नीट का क्वेश्चन है देखो ये, ठीक है, यहाँ पे पहले वाले का मास है x, ठीक है, दूसरे वाले का मास कितना हो जाएगा 3x, तीसरे वाले का मास कितना हो जाएगा 5x, है कि नहीं, ठीक है, एंड द लेंथ्स आर इन द रेशियो 5:3:1, अगर पहले वाले का भाई साहब 5L हुआ, दूसरे वाले का 3L और तीसरे वाले का कितना हो जाएगा भाई साहब L, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे मास अपॉन ये आपका क्या हो गया भाई साहब लेंस, दीज आर बेसिकली द लेंस, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका मास, मास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और लेंस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है भाई साहब आपका रेजिस्टिविटी इंटू L बाई A, ये तो सबका सेम होगा क्योंकि सबके सब किससे बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं, ठीक है। अभी आपका लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला मामला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा भाई साहब, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब देखो आपका डेंसिटी, अगर मैं बोलूं मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास आपका क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो मास आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ से क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं, तो इसका x और इसका 5, इसका 3 और इसका 3, इसका 5 और इसका 1, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आपका बताइए मुझे यहाँ पे इसको अपन कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि सबके लिए ये सेम ही होगा, दिस इज बेसिकली डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, चलो डेंसिटी लिख देते हैं क्योंकि रो और रो से कंफ्यूजन हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू L, ठीक है, इसका एरिया कितना है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, किसका मास सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे 5:1, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो L आपका कितना हो जाएगा, तो अपन पहले वाले का कितना बोलेंगे R का कितना हो जाएगा, पहला वाला देखो क्या होगा रो सेम है, L क्या हो जाएगा लेंथ 5L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बोलो, अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला ना बोला M/D, ठीक है, इंटू L, है कि नहीं, ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन M/D इंटू L, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई साहब हो गया आपका M और D इंटू L ऊपर चला गया, डेंसिटी इंटू L, समझ में आ रहा है ये। इसी तरह से R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इंटू आपका लेंथ कितना है 5L, ठीक है, इंटू D इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा, हाँ 5 इंटू 3M ना, ये और ये भी 3 है ना, M भी तो 3 हो जाएगा, 3x है ना, एक मिनट नहीं देखो यहाँ पे इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का देखते हैं अगर अपन, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू होगी रो, ठीक है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई साहब, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, डेंसिटी तो सबकी समान रहेगी,
सिर्फ मास और लेंथ में चेंज हो रहा है। तो पहले वाले का इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे रो इनटू लेंथ कितना हो गया बोलो, यहाँ पे लेंथ इज 5L, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई साहब कितना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज M, और ये भाई साहब x मतलब x, M मतलब x, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका D इंटू एल, तो ये हो गया D, ठीक है, इंटू L कितना है भाई साहब 5L, 5L है ना, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, रो L स्क्वायर D अपॉन x, ये सबका ही आएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो इसका R2 का कितना हो जाएगा बोलो, R2 का हो गया भाई साहब आपका कितना, रो इंटू L कितना हो गया भाई साहब आपका 3L, ठीक है, रो हो गया आपका 3L अपॉन A कितना हो जाएगा भाई साहब M, और यहाँ पे कितना हो गया D इंटू L की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 3, नहीं ये 3x हो गया ना, ये हो गया आपका 3x, ठीक है, ये हो गया आपका 3x, ये हो गया आपका 3x, ठीक है भाई साहब, चलिए, और यहाँ पे आपका D इंटू 5L मतलब D इंटू 3L हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये 3 और 3 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना, हाँ हाँ 3L ना, तो 3L इधर भी आएगा, ठीक है, तो एक 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 रो L स्क्वायर D बाई एक्स, ठीक है, क्लियर है। R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, R3 की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू L भाई साहब कितना है यहाँ पे L ही है, ठीक है, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, मास यहाँ पे कितना हो गया 5x, ऊपर भाई साहब D इंटू L, ठीक है, तो ये हो गया आपका रो, तो 1/5 हो गया ये, ठीक है, दिस विल बी 1/5 L स्क्वायर D बाई एक्स, ठीक है। तो अगर इन तीनों के वैल्यूज को ले अगर हम रेशियो, तो ये हो जाएगा ना 25:3:1/5, 25:3:1/5, इसको भाई साहब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 125 हो गया, 5 3 15 हो गया, और ये 1, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वैसा 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके ओके ओके, thus option D is the correct answer, clear है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही।